career. He offered legal consulting services to his clients, which started giving a bit of a pace to his dreams. Later on, he realized that there was more to offer when he met clients to help them with their legal issues. The clients would walk with burdened with stress and anxiety, hoping to get resolved to their legal matters. Little did he realize that he unknowingly started counseling them on general well-being. The clients shared how relieved they felt after a conversation with Akshay Agarwal, and that arouses his passion for counseling psychology. He pursued his master's degree in counseling psychology and decided to take mental health service to the next level. His vision is living a holistic, healthy life. Akshay sir believes that the mental fitness of a human is above all fitness bodies. Everything can be taken care of easily if the person is mentally fit. I would like to request our founder, Mr. Zia Ansari, to welcome sir. Good morning, everybody. Welcome, Akshay sir. This idea of bringing such webinar triggered me, and I saw my students who are preparing for their judiciary examination feel very uneasy during this lockdown period because their studies are not getting forwarded. Their education has been stopped. They are not having any uh, notifications. Moreover, I find that a number of people are facing this, and I always follow Akshay sir from last 1 year, and I see that how he is serving the society in this manner, and I found Akshay sir be the best person to do this. So it's up to you, sir. Giving you the mic, holding this session. Thank you, sir. Thank you for coming. Thank you, Ansariji, and thank you, Apurva, for such a warm welcome. It's totally my honor to hear it from you. And trust me, this is the first time I have heard my introduction to that extent. And I don't know, Apurva, from where did you get this? Matlab, this was somewhat the real story. And I remember I never gave anything to Ansariji regarding this. So Sir, kudos sir, to you. Thank you. we follow you. Sir, we follow you actually. So our team follow you. Wow, you actually spoke my heart, and this is one of the best introduction about myself I have ever heard. Not just in webinars, but I have done more than 500 sessions all over the country. So thank you so much, Apurva and Zia ji, for inviting me and giving me this opportunity. I'll straight away come to the session. Just allow me to share my screen. So host disabled participant screen sharing. Sir, I'm just opening it. Yeah, yeah. So we'll help our participants with a small PPT and we'll give them a remarkable experience today. So I hope you all are able to see my screen. Am I right? So Yes. my dear friends, this session is going to be really interactive. I want you all to participate because see, I'm sure that Zia sir has not asked from you for any money to come and attend this session, but the biggest thing what you can contribute to anybody on this earth is your time. So you all have given us our time, valuable time. You all have come here to attend this session. So I really want, my dear friends, this session to be very interactive, and we all have to make sure that we all talk with each other. So I guess maybe the chat has been disabled. Is that the case, Ansari ji? Sir, I'm just opening the chat so that any person can chat with you. So Right. Opening So it. maybe we'll not allow them to speak or share their videos, but let's allow them to share their experiences on chat. And if somebody is doing a mischief, we can. Yes, sir, I've done that. I've done that. We have opened the chat room for you, so they can publicly write down. Great. Thank you, Zia ji. I'm sorry I'm giving you so much troubles, but in order to make the session interactive, so I am one such person who is very fond of lively session. So my dear friends, a very warm welcome to you all, and let's start with this session. And I request you all to just be with me for this 1 hour and just not think about anything else. Do you all understand Hindi language? Just type yes or no in the chat box. आप सब लोगों को हिंदी भाषा समझ में आती है? Yes or no in the chat box. सोनी सेज यस, सोनी ने सर हिला दिया है, बट एक बार सब लोग चैट में भी लिख दीजिए. ग्रेट. सबको हिंदी भाषा समझ में आती है, तो आई विल कीप दिस प्रोग्राम इन इंग्लिश सो दैट वी ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड बोथ द लैंग्वेजेस. सो माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट गिव मी दिस 1 hour. आज की डेट में ह्यूमन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ फोकस एंड कंसंट्रेशन. अभी हम अगर जुडिशरी की बातें करें, कोचिंग की बातें करें और किसी भी चीज की लाइफ में बात करें, तो कंसंट्रेशन इज द बिगेस्ट थिंग. वो कहते हैं ना कि आप
जिस चीज पे अपना फोकस करके काम करते हैं उस चीज में यू गेट बेटर रिजल्ट्स. ऑन द अदर हैंड जो चीज आप मल्टीटास्किंग में करते हैं उसमें रिजल्ट्स नहीं आते हैं. So this 1 hour, I would request you all to be with me in the session so that you actually make the maximum out of it, and you can actually make this session a life-changing session for yourself. So let's start, my dear friends. So Vipul says Hindi में best होगा, so I'll try to speak in both the languages. But जहाँ पे आपको जो भी चीज समझ में नहीं आए, please आप chat box में feel free to discuss. So ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आज के सेशन के, मैं आपको एक थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज में बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ. टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस एंड स्ट्रेस. तो जैसी आजकल सिचुएशन हो गई है बाहर कोरोना वायरस, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. अभी एक बहुत ही रिसेंटली एक सेलिब्रिटी की भी डेथ हुई है. सुसाइड है, मर्डर है, उस बारे में हम नहीं जाएंगे, बट एक डेथ हुई है विच इज वेरी सैड इंसिडेंट what has happened, and that incident has put us all very down and very low in our lives. तो उसके बारे में बात करेंगे. आज हम बात करेंगे ट्रेनिंग ऑफ ब्रेन टू फंक्शन इन डिजाइंड वे एंड नॉट इन डिफॉल्ट. मतलब ये जो एसेट हमें दिया गया है, मतलब ऊपर वाले ने जो एसेट हमें दिया है, इस एसेट का बेहतरीन तरीके से हम उपयोग कैसे कर सकते हैं और इसको उस तरीके से कैसे इस्तेमाल करें जिस तरीके से हम करना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ जमाना इसको इस्तेमाल कराए. है ना, हम लोगों ने बड़े लोगों से कहावत सुनी होगी, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसका दिमाग इसके काबू में नहीं है ना, ये तो अपने आप से बाहर हो चुका है, ऐसी ऐसी बातें सुनी है. तो वो बातें बहुत जरूरी होती है, वो बातें बहुत सही हैं, उन सब बातों का कुछ ना कुछ मतलब भी है. तो विल डिस्कस टुडे दैट व्हाट इट एग्जैक्टली मीन्स, and we'll understand the difference between mind and brain today, and also we will understand that जो ये लॉकडाउन फेज चल रहा है, जो ये कोरोना फेज चल रहा है, जहाँ पे अब काफी सिटीज में, काफी स्टेट्स में काफी चीजें खुल गई हैं, बट ऑब्वियसली मेंटली हम लॉकडाउन में ही हैं. आप भी आज की डेट में किसी से मिलते होंगे, वो खुल के आप हाथ नहीं मिला पाते होंगे, हक नहीं कर पाते होंगे, पब्लिक प्लेसेस में नहीं जा रहे हैं, एनसीआर में मेट्रो नहीं चली है, ट्रेन ठीक तरीके से नहीं चली है, बसेस नहीं चली हैं, थिंग्स आर नॉट ओपनड अप येट. सो why that is happening, what is happening, we'll understand all of those things. So as I start the session, first of all I would want to discuss this, that what is coronavirus, and ये बहुत जरूरी है इस समय डिस्कस करना, रीजन बीइंग क्योंकि ये हम सब लोग कहीं ना कहीं इसकी वजह से प्रभावित हैं. तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप सब लोगों से, what is coronavirus according to you? Just whatever comes to your mind when you listen to this term, can you all type it in the chat box, ताकि मुझे सबका समझ में आ जाए कि हम किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं अभी. Whatever comes to your mind, there is nothing right, there is nothing wrong. So as soon you listen to this question called what is coronavirus, what exactly comes to your mind? So whatever comes to your mind, please write it down in the chat box. Chart is just in front of me. So as soon you'll write something, I'll be able to see that. Come on, we are 80 participants. Shivam, Sony, everybody. Virus which has an ability to multiply exponentially. Arsh Khan, बिल्कुल ठीक बोला आपने. Gopal Anand, it's for some it's opportunity. Great, Gopal ji, a beautiful answer. Gopal ji is a very humble person, I know him personally. तो अर्श खान ने जवाब दिया है, गोपाल आनंद जी ने जवाब दिया, दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. मैं इस जवाब के जरिए एक्चुअली जानना चाहता हूँ कि हमारे दिमाग में एग्जैक्टली चल क्या रहा है. व्हाट इज द राइट सिचुएशन इन आवर हेड? Okay, come on. It's an opportunity to prepare better. Shreya Bhatnagar, beautiful answer. A virus which has brought lives to a stop. Okay. So do we see the mix of answers which are coming in here? So some people are actually worried about it. Some people are taking it as an opportunity. So इसमें मजे की बात आती है कि वायरस सेम है, कोरोना सबके लिए सेम है, बट सोचो उसने इम्पैक्ट जो सबके लिए किया है वो अलग है. तो बेसिकली आज के सेशन में हम समझेंगे कि एक्सटीरियर जो चीजें होती है ना, वो हमें प्रभावित नहीं कर सकती. अंदर से हमारी मनोस्थिति कैसी है, वो एक मजेदार चीज है. और आज के सेशन में हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे कि परिस्थितियां तो आती जाती रहेंगी, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा बाहर. अभी आज एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है बाहर, सोलर एक्लिप्स जो अभी सब बाहर चल रहा है. उसके बाद उसके अलावा अभी अर्थक्वेक प्रेडिक्टेड है आने वाले टाइम में, कोरोना वायरस तो चल ही रहा है. तो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस तो देखो कुछ ना कुछ होती रहेंगी, बट हाउ वी कैन बी प्रिपेयर्ड mentally as per the design thought process, उसके बारे में आज हम कुछ मजेदार बात करेंगे. It's not an opportunity for me, but a little bit good. It gives us time to stay with family and know them better. Okay, Sony. Vipul says a virus which is affecting the world together, a virus which has given ocean of opportunity and make social relationship back in track. Absolutely. Avinash says a pandemic resulted in less distractions. Shubhangi says wonderful. Great. अब सारी पॉजिटिव हो गए एकदम से. Okay.
So एक कोविड के बारे में छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं. It is a respiratory illness disease which is highly contagious, and in severe cases it can also cause death. So hence it is an important thing which has come on our way. And why is it dangerous? That it can spread within the whole state, country, and then the world, and it can destroy the economy of any country. For a lot of countries it has already happened. India is still safe. As a country we are still managing to survive, but कुछ नहीं पता आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है. तो दोस्तों बच के रहें. और लॉकडाउन इज द ओनली रेमेडी एट दिस मोमेंट. अब हम सब लोग परेशान है कि लॉकडाउन क्यों हो गया, देश में ताला क्यों लग गया, हम सब बाहर क्यों नहीं जा पा रहे हैं. उसका मेन रीजन है सो दैट गवर्नमेंट कैन डू प्लानिंग and medical facilities can be improved and spreading of the virus can be controlled. So let's understand this thing that this is the need of the hour कि जो ये लॉकडाउन हुआ है ये इन 3 मेजर कारणों की वजह से हुआ है. The pandemic giving environment to recover and opportunity. Okay, Naved says opportunity to plan, but where to implement those plans? सब discuss करेंगे अभी. Singh says virus which is good for environment but bad for economic. Okay, we'll discuss that. We'll discuss that. So now let's come to the main part of the session. I just wanted to spend 5 minutes on the current situation. Now my session begins, and my dear friends, this session is actually to feed you above the neck. To feed you above the neck मतलब इस सेशन में हम लोग नेक से नीचे वाले बॉडी पार्ट की बात नहीं करेंगे, नेक से ऊपर वाले बॉडी पार्ट की बात करेंगे. और मजे की बात बताता हूँ, 90% जो वेटेज है हमारी बॉडी की वो इसी बॉडी पार्ट से है ना. आईज थ्रू विच वी सी द वर्ल्ड, द ईयर थ्रू विच वी लिसन फ्रॉम द वर्ल्ड, नोज वी स्मेल, with the mouth we eat, and the most important part which is located here, which is called the central system of the human body, which is the main crux of the human body. इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो वो डिस्कस करने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन? व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि आगे हम जब स्ट्रेस मैनेजमेंट की और हैप्पीनेस की बात करने वाले हैं, तो वो सब बातें करने, स्ट्रेस और हैप्पीनेस की बात करने से पहले ब्रेन और माइंड का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है. So whatever comes to your mind, please type it in the chat box. What do you think? What is the difference between mind and brain? और इसमें कोई गूगल करने की जरूरत नहीं है. कुछ स्मार्ट लोग होते हैं साइड में गूगल में चले जाते हैं, ढूंढ ढूंढ के लाते हैं. तो जस्ट ट्राई, मैं तो बता ही दूंगा आपको, गूगल से अच्छी डेफिनेशन दूंगा, बट ट्राई एंड राइट इट डाउन व्हाटएवर यू थिंक. Shubhangi says brain is an organ, mind is the conscious subconscious awareness and its effect on you. Shubhangi, beautiful answer यार. अच्छी तैयारी कर रहे हो आप लोग. मतलब brain is an organ, mind is the way you think. ब्रेन इज द ऑर्गन. ओके, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. मतलब आप 3 आंसर्स आए हैं मेरे सामने अभी तक और तीनों सही हैं. मैं ये नहीं बोल सकता कि गलत हैं, बट दीज आंसर्स कैन बी मेड बेटर. कम ऑन एवरीबॉडी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन? कभी सोचा हमने बैठ के, कभी ये दिमाग में आई है हमारे बातें? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन. माइंड इज द थिंकिंग. ओके, शिवम सेज माइंड इज द थिंकिंग. Come on, everybody. We are around 87 people now. Come on, everybody. Soni, Shivani, Naved, Shivam, Rohit, Shubhangi, Gaurav, Simar, Akshat, Mehak, Mohammad Adil, Shrishti. Come on, everybody. Mind is the thinking. What else? What else? Brain works by default. Brain is an organ, mind is the mental thought. Okay, beautiful. Brain functions cannot be controlled, mind can be controlled. Okay, okay, beautiful answers, beautiful. Mansi is there, Pooja, Meenu, Vipul. Brain is an organ and mind is something by which human being get their uniqueness, that is self-conscious. Kavya, the next level answer, bro. Next level answer. Great. So, great. So what? Let's do an activity here to understand what is the difference and how this session is actually talking about happiness and stress management. Brain is an organ and mind make you smart, good or evil. Okay, okay. Let's do a small activity here. Let's do a small activity here. Let's enjoy that activity so that we actually understand the difference between mind and brain, and then we'll talk about stress and happiness. Then we'll talk about it. Okay, so are you ready for that activity? Just give me a quick yes in the chat box. So just give me a quick yes in the chat box if you're ready for the activity. Great, great.
come on, everybody has to respond. और मतलब मुझे बोलते हुए में कोई दुख नहीं होगा कि जो ये 87 लोग में से 40-50 लोग बैठ के आराम से सो रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये आप लोग अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो आप मुझे ऑलरेडी दे चुके हो, विच इज योर टाइम, एंड स्टिल इफ यू आर नॉट प्लेइंग अराउंड विद मी यू विल नॉट enjoy. Okay, so great, you are all ready for the activity. Now in this activity what we all have to do is, you don't have to get up, you don't have to go anywhere, just listen to my instructions very carefully. What you all have to do is just follow and count the black things which are around you in the room. Just follow and count the black things which are around you inside the room. It could be anything. So for example, I have my phone which is black, laptop charger is black, this headphone 3 is black, my helmet is black, shoes 5, charger 6, socks 7, AC 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So I have around 15 black things in my room. So I have around 15. What is your number? So just tell me the number. Just tell me the number. Don't tell me the objects. Just tell me the number. Okay. It can be any number. 18, 27, 6, 6, 14, 7, 5, 10, 11, 12, 6, 16, 6, 8. It could be anything. Number could be anything. So there is nothing right. There is nothing wrong. Just be honest while you're doing this activity. Great. Great. Now once you have noted all the black things around you and you've given me the number, what I want you to do next here is, please listen to me very carefully and understand this. While you are sitting, everybody please close your eyes. जहाँ पे भी आप बैठे हैं सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए और कोई टेंशन मत लीजिए, कोई सामान चोरी नहीं होगा क्योंकि आप अपने घर में ही बैठे हैं. So जो भी है जहाँ पे भी है, just everybody close your eyes. Everybody close your eyes. Everybody close your eyes. And जब आपकी आंखें बंद हैं और आप सोच रहे हैं, तो उन बंद आंखों के साथ सोचिए और मुझे बताइए कि आप लोगों ने कितनी वाइट चीजें देखी. ओके, बूम, ओपन योर आंसर. कितनी वाइट चीजें याद आई थी? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए. ऑनेस्टली लिखिएगा, कितनी वाइट चीजें याद आई थी जब आंखें बंद थी? 1, 2, none, 0, 1, 2, 1, 3, none, 0, 0, 0, 1, none, 0, 1, 2, none, none, 0, 1, 2, none, 0, 1, 2, none, none, 1, 1, 1. अब ऑनेस्टली अपने आसपास देखिए कि कितनी वाइट चीजें हैं. जितनी आपको याद आई थी उससे ज्यादा है या नहीं है? The number of white things you were actually able to see right now, the number of white things when you look around you, are they more in number? Yes or no? Yes. Everybody, yes. Just for example, I can see this remote, I can see the charger, again I can see the stabilizer, I can see a chart, I can see calendar, I can see the lights. My lights are white, AC is white, and a box is there. So many white things, but जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा था. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आज जो ये सेशन लेने जा रहा हूँ ये आपको आपकी कोचिंग में भी हेल्प करेगा, आपको आपकी प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा, आपको आपकी लाइफ जीने में भी हेल्प करेगा. दिस कैन बी अ लाइफ चेंजिंग सेशन फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स, एंड दिस सेशन आई हैव बीन डूइंग फॉर बेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स इन दिस कंट्री and they have just loved this session. So just be with me. Now my question to you all is, please tell me कि जब आपकी आंखें बंद थी तो आपको ये वाइट चीजें दिमाग में क्यों नहीं आई? इतनी सारी वाइट चीजें आपके आसपास हैं तो दिमाग में क्यों नहीं आई? What is the possible reason for that? Could be anything. Think about it. Think about it. ये वाइट चीजें हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? Okay, somebody says in private chat ki because we were focusing on black things, we focused on black and not white because I asked you to focus on black. Absolutely. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग. Because I only asked you to focus on black. अब मजे की बात सुनिए. Exactly. Everybody, we focused on black. We see them, register them. Okay, absolutely. आप सब बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं. I'm really loving this audience. You all are exactly with me. We focused only on black.
focus on black because we counted black things before. Perfect. Absolutely the correct answer. Now what I want you all to do here is please understand, आपके माइंड ने इंस्ट्रक्शंस दिए ब्रेन को कि जाओ और आसपास सारी ब्लैक चीजें ढूंढो. एज अ रिजल्ट आपके ब्रेन ने पहले आसपास सारी ब्लैक चीजें ढूंढी विद द हेल्प ऑफ आईज, विद द हेल्प ऑफ, मतलब यू वर लिसनिंग टू मी विद द हेल्प ऑफ योर ईयर्स. और आपके ब्रेन मतलब जो एक फिजिकल ऑर्गन होता है जिसमें लोब्स होते हैं, 5 लोब्स होते हैं, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, फ्रंटल, प्रीफ्रंटल. आई गेस 12 तक या 10 तक जो बेसिक साइंस हम सब लोगों के पास थी, हम सब लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है. तो ब्रेन ने हमारे आसपास सारी ब्लैक चीजें नोटिस करी और उसको रजिस्टर कर लिया और हमने यहाँ लिख दिया. बट जैसे ही इस बारी आपके माइंड ने इंस्ट्रक्शंस दिए कि बेटा ऐसा कर, मुझे व्हाइट चीजें बता, अब आपका ब्रेन आंसर ही नहीं कर पाया. आंसर पता है क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि आपने पहले अपने ब्रेन को लगाया था कि वो जाए और जाके ब्लैक चीजों पे फोकस करे. अब सिमिलरली ब्लैक और व्हाइट जो मैंने ये गेम खेला है ना आप लोगों के साथ, ब्लैक है स्ट्रेस, व्हाइट है हैप्पीनेस. सेम रूम में दोनों कलर्स मौजूद है, सेम लाइफ में दोनों सिचुएशंस मौजूद है. अब ये हमारे ऊपर है कि हमारा जो माइंड है वो ज्यादा किस चीज के लिए ट्रेंड है, कि वो क्या इंस्ट्रक्शंस देता है. डिड यू गेट द एनोलॉजी? आपको समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? जस्ट टाइप यस और नो, और एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल ओनली व्हाटएवर आई हैव डिस्कस नाउ, प्लीज फील फ्री टू आस्क. आपको समझ में आया तो यस बोलिए, नहीं आया तो नो बोलिए, और अगर आपको मतलब कुछ पूछना चाहते हैं प्लीज पूछिए. So I see a lot of yes coming in. So it means that you all understood. With a thumbs up also. Okay. Somebody says beautiful analogy. Thank you. Great. आपको समझ में आया? मेरे को सही अच्छा लगा. Great. अब आते हैं सेशन पे. अब आपको कुछ मजेदार चीजें बताता हूँ. जब आपको ब्रेन और माइंड में डिफरेंस समझ में आ चुका है तब आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं व्हाट इज पॉजिटिविटी. है ना, दुनिया भर में लोग मिलेंगे, है ना, बाबा भी यही बोल रहे हैं, दादी भी यही बोल रही हैं, है ना, पंडित भी यही बोल रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट भी यही बोल रहे हैं, घर वाले भी यही बोल रहे हैं, और मेरे को लग रहा है जिया सर भी यही बोलते होंगे सबको कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव. टीचर्स भी यही बोल रहे हैं, प्रिंसिपल्स भी यही बोल रहे हैं, है ना, हस्बैंड भी यही बोल रहा है, वाइफ भी यही बोल रही है, सब बोल रहे हैं बी पॉजिटिव. बट व्हाट इज पॉजिटिविटी? व्हाट इज पॉजिटिविटी एक्चुअली? अब मैं आपको बताता हूँ पॉजिटिविटी क्या है. इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड where the person is in total control of his actions irrespective of the situation. तो पॉजिटिविटी जो है ना वो एक स्टेट ऑफ माइंड है. उसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि बाहर जो है सिचुएशन क्या है. मतलब एक किसी के घर में जहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, प्रॉब्लम हो गई, वो वहां पे भी पॉजिटिव हो सकता है. और एक जो घर में बैठा है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, एकदम सारी लग्जरीज है, और वो घर में बैठे हुए भी बहुत नेगेटिव हो सकता है ना. लाइक ऐसे केसेस आपने देखे होंगे ज्यादा कि एक इंसान जिसके पास सब कुछ मौजूद है बट वो फिर भी बहुत नेगेटिव है. तो पॉजिटिविटी इज अ स्टेट ऑफ माइंड. इट हैज नथिंग टू डू विद द एक्सटर्नल रिसोर्सेस. राइट? डू यू ऑल अग्री टू दैट? डू यू ऑल अग्री? जो पॉजिटिविटी है दैट इज अ स्टेट ऑफ माइंड. अब मजे की बात है, यहां तक क्लियर हो गया कि स्टेट ऑफ माइंड है. अक्षय ने ये बता दिया. अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये स्टेट ऑफ माइंड लेकर कैसे आना है, इसके लिए एक्शंस क्या करने हैं और ये क्यों करना जरूरी है. और अगर हम ये नहीं करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ कॉन्शियस हैबिट व्हाट वी हैव टू इनकलकेट कि हमें पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है, हमें हैप्पीनेस पे ध्यान देना है. जो व्हाइट और ब्लैक मौजूद है हमें व्हाइट पे ध्यान देना है. बट उसके लिए ट्रेन कैसे करें अपने ब्रेन को, मतलब उसके लिए हम आदत कैसे डालें. जैसे कई लोगों को ना आदत होती है, सिगरेट पीने की आदत है, ड्रिंक करने की आदत है, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाने की आदत है, रात को लेट सोने की आदत है, क्रिकेट खेलने की आदत है. हमें हर चीज करने की आदत होती है. सिमिलरली टू बी हैप्पी इज अ कॉन्शियस डिसीजन. And how it can happen, I'll just explain it to you. But why is it important? First we need to discuss that. So why being positive is important for you? It helps in maintaining good health, or health is wealth, my dear friends. Health is wealth. Second is it helps you achieve more in life. हम दुनिया में सब लोग आज के डेट में हम इस सेशन में क्यों बैठे हैं, हमने ये कोचिंग क्यों ज्वाइन कर रखी है, हम लोग कुछ भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी ऑल हैव दैट इनर डिजायर टू अचीव मोर इन लाइफ. वी ऑल हैव इट, वी ऑल हैव इट, है ना. एंड थर्ड, वी ऑल वांट टू मेंटेन ग्रेट रिलेशनशिप्स. बट जो इंसान अंदर से ही नेगेटिव है, ना तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी, ना उसके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, ना वो लाइफ में कुछ अचीव कर पाएगा. मैंने आज तक कभी इतिहास में नहीं देखा
कि कोई बहुत नेगेटिव इंसान आगे बढ़ा हो और उसने कुछ अचीव किया हो, स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड, टेक्निक्स, ये सब बाद में आता है, ये सब मटेरियलिस्टिक है, उसके लिए आपने सही कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, वो कोचिंग में आपको सिखा दिया जाएगा। बट हैप्पीनेस कहाँ से आएगी, पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी, ये ज्यादा बड़ा सोर्स है। जो अगर लेट्स से आपको 10 चीजें चाहिए एक कोचिंग में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स लाने के लिए, तो उसमें से ऊपर की 8 चीजें हो सकती हैं, टेक्निक, नॉलेज, एटीट्यूड, जनरल नॉलेज, IQ, बट जो पहले की जो 2 फाउंडेशन है ना, दैट इज योर पॉजिटिविटी एंड लेवल ऑफ हैप्पीनेस इनसाइड यू। जब तक आप खुश नहीं है, एक्साइटेड नहीं है, तो कैसे गेम चलेगा माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ कि जो पॉजिटिविटी है, ये कॉन्सेप्ट है, ये काम कैसे करता है। सो साइकोलॉजिस्ट हैं बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड में, उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दिया है विच वी ऑल नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड। दिस मॉडल इज TBA। TBA, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अच्छा, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आज तक ताजमहल कितनी बारी बना है? टिल नाउ हाउ मेनी टाइम्स द ताजमहल हैज बीन बिल्ट? दिस इज द क्वेश्चन टू यू ऑल। आज तक ताजमहल कितनी बारी बना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या आंसर है? 1 1 वंस 1 1 2, ओके, कुछ 2 वाले भी आए हैं। तो विपुल सेज 2। विपुल जी, क्या आप बताना चाहेंगे आप 2 क्यों बोल रहे हैं? वेट वंस, दावेश शर्मा जी भी 2 कह रहे हैं, तो दावेश जी आप बताना चाहेंगे आप 2 क्यों कह रहे हैं? चैट पे क्या आप आंसर करना चाहेंगे? माइंड एंड एक्चुअल, ओके, गोपाल जी सेज माइंड एंड एक्चुअल, ब्यूटीफुल। ताजमहल होटल है, नो नो नहीं, ऐसे नहीं, ताजमहल आगरा वाला ही। तो विपुल जी सेज ताजमहल होटल एंड ताजमहल आगरा। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द आगरा ताजमहल जो शाहजहां ने बनवाया था मुमताज के लिए, वही वाला। One in their mind first and then actual, दावेश absolutely sir 2 times। तो मैं देख रहा हूँ सबके अब आंसर चेंज होते जा रहे हैं, सब लोग दुनिया से अब बदल रहे हैं, सब चीटर लोग हैं। पहले 1 लिखा था, बाद में इन लोगों को आंसर देख के 2 कर रहे हैं। बट मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, असली में आंसर 2 भी नहीं है, असली में आंसर है 3। असली में आंसर 3 है। और थ्योरी सेम है, जो बलजीत जी दे रहे हैं, जो दावेश जी दे रहे हैं, जो ऊपर कई लोगों ने 2, शिवम ने जो थ्योरी दी है, थ्योरी यही है, बट रियल आंसर इज 3। आई टेल यू हाउ, why and how the real answer is 3, because सबसे पहले ताजमहल बना शाहजहां के दिमाग में, बिल्कुल ठीक, बट दूसरी बारी ताजमहल बना एक आर्किटेक्ट ने बनाया, एक लेआउट पे, एक पेपर पेंसिल लेके। एक जो आर्किटेक्ट होता है ना, वो लेआउट बनाता है कुछ गत्तों का, कुछ प्लास्टिक्स का, जो पहले एक लेआउट बिछाया जाता है। एंड थर्ड इज द रियलिटी विच वी सी इन आगरा। तो फर्स्ट इज थॉट, सेकंड इज बिहेवियर, थर्ड इज एक्शन। Mind, layout and actual, absolutely Shivam, Baljit ji, now you got it. So do you all agree? है ना, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कभी, ऐसा तो नहीं होगा ना कि शाहजहां खड़े हैं, अच्छा ऐसा करो यहाँ पे बनाओ फाउंटेन, अच्छा ऐसा करो यहाँ पे बनाओ गेट, अच्छा ऐसा करो यहाँ गाड़ो हमारी बेगम को। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना, मतलब इट वाज अ सिस्टमाइज्ड प्रोसेस। मतलब आप देखो, जनरेशंस टू जनरेशंस लग गई, मतलब उसको बनने में कितने सालों लगे, तो कितनी प्लानिंग हुई होगी। सिमिलरली जो हमारा माइंड है, जो काम करता है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो भी हम करते हैं काम, उसके पीछे की जो बुनियाद है वो एक सोच से होती है। वो सोच हमारा बिहेवियर बनता है, वो बिहेवियर हमारा एक्शन बनता है ना। आज पहले आपके दिमाग में 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, साल भर पहले एक थॉट आया होगा। थैंक यू आयुष। आपके सब लोगों के दिमाग में ना एक थॉट आया होगा कि हमें इस लेवल पे पहुंचना है। उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपने सोचा कि मेरे पास क्या सोर्सेज हैं, कि मेरे को कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। फिर कोचिंग आपने देखा आसपास अच्छी कौन सी है, फिर आपने देखा जिया जुडिशियल है, मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। फिर आपने एक्शन लिया, आपने जाके कोचिंग ज्वाइन करी। आज की डेट में सर और सर की टीम जो भी आपको पढ़ाती है, आप वो सब चीजें पढ़ते हो, राइट? दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो इट ऑल स्टार्ट्स विद अ थॉट। अब मजे की बात क्या है, हम लोग जो साइकोलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं, हम लोग एक्शन पे फोकस ना करके हम थॉट पे फोकस करते हैं, है ना। हम लोग एक्शन पे फोकस नहीं करते, किसी ने ऐसा किया, कर दिया, कोई बात नहीं, क्यों किया, कैसे किया, क्यों किया थॉट, कैसे किया बिहेवियर, कर दिया एक्शन। तो इस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी थॉट्स को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। मजे की बात यह है कि चीट कोड्स दूंगा आज आपको मैं, कि इन थॉट्स को आप कैसे
चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। आइए अब आपको मजेदार चीज दिखाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपके स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा। लेट अस यूज द राइट वोकैबुलरी। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 नेगेटिव सेंटेंसेस दिए हैं, 5 नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आपको करना क्या है, सबको करना है, प्लीज ऑनेस्टली करना है, नहीं करोगे ना मतलब अभी वेबिनार में बैठे हो, मेरे सामने बैठे होते तो मैं तो भाई बहुत स्ट्रिक्ट हूँ और आपसे करवा के ही मानता, बट अभी वेबिनार में हो, मेरे हाथ में नहीं आ पाओगे, बट बहुत नुकसान करोगे अगर करोगे नहीं। तो बहुत ध्यान से करना कि ये 5 मैंने आपको सेंटेंसेस दिए हैं, इन पांचों सेंटेंसेस को आपको पॉजिटिव बना के लिखना है अभी। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे लिखा है, पहला सेंटेंस है आई एम स्टक एट होम। तो इंस्टेड ऑफ दिस सेंटेंस इट कुड बी आई एम सेफ एंड सिक्योर एट होम। और जैसा कि श्रेया ने लिखा है आई एम एंजॉयिंग एट होम, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पांचों सेंटेंसेस जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, पांचों को पॉजिटिव बना के आप अभी चैट में लिखिए। कम ऑन एवरीबॉडी हैज टू डू इट। फिर मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ है, क्या किया हमने, ये हुआ क्या और किया क्या। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी। I can defeat coronavirus. Okay, wonderful. I will fight corona. I am enjoying at home. बिल्कुल ठीक है everybody। ये पांचों सेंटेंस आप कोई भी सेंटेंस पिक कर लीजिए, है ना, लास्ट के सेंटेंसेस भी पिक कर लिए। 2 I will be healthy and won't be ill. Perfect. I will eat healthy so I will not get coronavirus. Okay, perfect. स्नेहा, काव्या, मैथ्यूज जी बिल्कुल ठीक है, संजना बिल्कुल ठीक है, आयुष बिल्कुल ठीक है, शिवानी बिल्कुल ठीक है, जिया जुडिशियल बिल्कुल ठीक है, शुभांगी बिल्कुल ठीक है, सोनाली परफेक्ट, विपुल ग्रेट, विपुल परफेक्ट, महक पांडा परफेक्ट, विशाल वेद परफेक्ट, कीर्ति वशिष्ठ बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने अपनी थॉट को मॉडिफाई करना सीखा, आपने प्रैक्टिस करी थोड़ी सी। मतलब देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने मेरे साथ ये प्रैक्टिस करी अब आपका जीवन मंगल में हो गया, मैंने आपको कोई जड़ी बूटी लाके दे दी, बट मैंने आपको आज एक ट्रिक सिखा दी, मैंने आज आपको एक गेम सिखा दिया, जिस गेम से आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया कि अपने नेगेटिव थॉट को आपको बैठे बैठे पॉजिटिव कैसे करना है। अब मजे की बात क्या है, जैसे ही आपने इस नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव किया होगा, आपको एक अच्छी फीलिंग ऑलरेडी वैसे ही आ गई होगी। तो मैंने भी एक कोशिश करी थी, जैसे आप लोगों ने नेगेटिव को पॉजिटिव किया, मैंने इस तरीके से उनको पॉजिटिव किया था। आई होप यू ऑल आर एबल टू सी दोस पॉजिटिव सेंटेंसेस इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन नाउ। ग्रेट। तो इस आई स्ट्रक माई सेल्फ, शिवानी नेगेटिव हो गया तो सो पॉइंट क्या है, गेम क्या है माय डियर फ्रेंड्स, की नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे आसपास रहेंगे। अब हमें करना क्या है, कॉन्शियसली हमें उस वोकैबुलरी को पॉजिटिव करना है, कॉन्शियसली हमें ये एक्शंस लेने हैं। और ये सारा काम एक बार अगर हम करना सीख गए, देखो वैसे भी तो हम अपने आप को कन्विंस करते ही है ना किसी चीज के लिए। देखो पहली बारी जब सब लोगों ने कोई गलत काम किया था जीवन में, है ना, लेट्स बी ऑनेस्ट एंड रियल, जब पहली बारी हम सब ने सिगरेट पी थी, है ना, तो हमें पता था, अंदर से आवाज आ रही थी गलत है नहीं करना चाहिए, या ड्रिंक करिए, कुछ भी ऐसा कुछ गलत काम किया, किसी की गाड़ी का शीशा फोड़ा, एंटीना तोड़ा, बेल बजा के भागे, चोरी करी, दुकान से चॉकलेट ली, ये जो भी हमने काम किया, जो हम सबने करे हैं लाइफ में कभी ना कभी, जब भी हमने वो काम करे तो पहली बारी अंदर से थॉट आई होगी, नहीं भाई नहीं अक्षय ऐसा नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। बट फिर हमने अपने आप को कन्विंस कर लिया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कर लेना चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को हमने कन्विंस किया और वो काम हमने कर दिया। सिमिलरली जब हम अपने आप को लाइफ में नेगेटिव चीजों के लिए कन्विंस कर सकते हैं वोकैबुलरी का इस्तेमाल करके, उसी तरीके से हम अपने आप को अपनी जो हैबिट्स है उसको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस क्यों नहीं कर सकते राइट वोकैबुलरी के हिसाब से। कैन वी ऑल डू दैट, कैन वी ऑल डू दैट, यस और नो, कम ऑन टेल मी, कैन वी ऑल डू दैट, यस और नो। ग्रेट। सो अब मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ, एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है आप लोगों को मेरे साथ। मुझे लगता नहीं है कि 90 लोग हैं, हम आपको अनम्यूट तो नहीं करेंगे अभी, बट आपको प्लीज यस सर बट हाउ, शिवम आते हैं उस पॉइंट पे भी आते हैं। तो अब आपको करना क्या है, मजेदार चीज, ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आपको why is it easier to convince ourselves for negative things, Shumangi? Because we have trained our brain for doing that, but if you will train your brain to convince yourself for positive things also, you can do that also। तो ये भी पॉसिबल है, दोनों चीजें पॉसिबल है, हमारे हाथ में हमें गेम कैसे खेलना है। तो एक आते हैं मजेदार बात पे आते हैं।
So power of positive affirmations. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मजेदार चीज, मैंने आपके सामने ना 4 सेंटेंसेस रखे हैं। इन 4 सेंटेंसेस को एक बारी रीड करिए, फिर एक बारी देख के पढ़िए, फिर आंखें बंद करके इसको पढ़िएगा। मैं आपको मैजिक दिखाऊंगा कि एक मैजिक होगा आपके साथ। तो एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस इज एवरीवन विल बी बेटर सून। एवरीवन विल बी बेटर, एवरीथिंग विल बी बेटर। सेकंड है आई एंड माय फैमिली आर सेफ। आंख बंद करके सेंटेंस को बोलिए, आई एंड माय फैमिली आर सेफ। आई एंड माय फैमिली आर सेफ। इस सेंटेंस को आंख बंद करके बोलिए। ऑल द एसेंशियल्स आर अवेलेबल एट माय होम। एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल सून। ये सेंटेंस को एक बार पढ़िए, फिर आंख बंद करके इसको मन में बोलिए सेंटेंस। फिर मैं आपको बताता हूँ क्या मैजिक होगा। किया आप सब लोगों ने? अब मैं आपको बताता हूँ मैजिक क्या हुआ होगा आप लोगों के साथ। जैसे ही आप लोगों ने ये सेंटेंस आंख बंद करके बोला होगा, आई एंड माय फैमिली आर सेफ एंड ऑल द एसेंशियल्स आर अवेलेबल, आपको ऑटोमेटिकली बिना कुछ किसी के बोले आपके दिमाग में आपकी फैमिली मेंबर्स की फोटो आना स्टार्ट हो गई होगी। आपके दिमाग में ऑलरेडी वो एसेंशियल आइटम्स विजिबल होना स्टार्ट हो गए होंगे। ऐसा हुआ या नहीं? यस और नो? टाइप इन द चैट बॉक्स, कम ऑन एवरीबॉडी। ऑटोमेटिकली हुआ होगा, किसी ने नहीं बोला आपको ऐसा करने के लिए, ये ऑटोमेटिकली हुआ होगा। 100%। यस यस यस। हाँ, ये मैजिक था। ये मैजिक ये था। ओके, कोई नो भी आया है एक बीच में, उन्होंने आंख बंद करके ठीक से नहीं बोला होगा, वरना इतने सारे यस आ रहे हैं। ट्रूली यस, सोनाली ने एकदम ट्रूली बोल दिया, तो एकदम कंफर्म बात हो गई है। सो पॉइंट क्या है इधर माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन योर आईज वर एक्चुअली क्लोज्ड एंड यू call a word with the help of your brain, your whole body and the universe actually tries to think about it and go in that direction. तो ये पॉजिटिव एफर्मेशंस मैंने आपके साथ इसलिए करा है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जो ये गेम है समझने का, कि किस तरीके से आप अपने आप को पॉजिटिवली कंडीशन कर सकते हो। जैसे नेगेटिविटी की तरफ जाना आसान होता है, वैसे ही पॉजिटिविटी की तरफ भी जाना आसान होता है। बट दिक्कत क्या है, हम कॉन्शियस एफर्ट्स ही नहीं लेते हैं, है ना। हम कितनी बारी सोचते हैं कि अपने आप को पॉजिटिवली इस तरीके से मोटिवेट करें। तो आज की डेट में जितने भी विनर्स हैं, आई एम अ कोच टू अ लॉट ऑफ एथलीट्स, I am a coach to a lot of entrepreneurs. I am a coach to a lot of public speakers who are there in India. So we coach them, we teach them personally that how do you actually become a game changer in your life and how do you actually think about these things. So let's understand, my dear friends, that पॉजिटिव एफर्मेशंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और अब आपको करना क्या है कि इन दिनों ये सब चीजें तो बहुत करनी है, और क्या नहीं करना है। एवरीथिंग विल बी बेटर। शुभांगी से दिस सेंटेंस साउंडेड अ बिट अनरियलिस्टिक। शुभांगी, एवरीथिंग विल बी बेटर फॉर श्योर। इट्स जस्ट द टाइम, इट्स जस्ट अ स्मॉल टाइम, थिंग्स वुड बी बेटर फॉर श्योर। सो क्या नहीं करना है इस लॉकडाउन में, स्टिकिंग टू द न्यूज चैनल, बिकॉज वो नेगेटिविटी का लूप बन जाएगा। और अपने मोबाइल पे और सिर्फ आसपास सिर्फ नेगेटिव न्यूज नहीं देखनी है। यू हैव टू टेक टाइम आउट ऑफ थिंग्स सो दैट यू एक्चुअली आर एबल टू लिव द लाइफ व्हिच यू वांटेड टू लिव। सो मेक श्योर यू आर नॉट स्टिकिंग टू द न्यूज चैनल्स। अब आते हैं, थैंक यू मिस्टर अमरनाथ जी। तो अब आते हैं मजेदार एक एक्सरसाइज पे जो मेरी फेवरेट है किसी भी ट्रेनिंग सेशन में। लेट्स डू अ स्मॉल गाइडेड मेडिटेशन फॉर यू ऑल, जस्ट अ स्मॉल मेडिटेशन। डू आई हैव योर परमिशन, yes or no? Just quickly tell me yes or no in the chat box. Great, great. Thank you. Yes, of course. Thank you. So let's do this. And so wherever you are, just don't go anywhere. Wherever you are, just be there and sit in a relaxed position. That's it. Wherever you are, just be there and sit in the relaxed position. Now, everybody, close your eyes. Everybody, close your eyes. And take a deep breath. Start breathing a little more deep. And notice your belly movement
as you breathe in, and notice your belly movement as you breathe out. Notice your belly movement as you breathe in, and notice your belly movement as you breathe out. Now, while your eyes are closed, please take your attention towards your feet. अपने पैरों की तरफ अपना attention ले जाइए और महसूस कीजिए, try to feel it, that how your nails are attached to the feet. आपके पैरों के नाखून आपके पैरों के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, उन नाखूनों को महसूस करने की कोशिश कीजिए अपने पैर के माध्यम से. Try to feel that how those nails are attached to your feet. महसूस कीजिए कि वो nails आपके पैरों के साथ कैसे जुड़े हुए हैं. Now bring your attention towards the fingers of your hands. जैसे ही आप अपनी attention अपने fingers की तरफ लेकर आए थे, तो एक छोटी सी movement हुई होगी आपकी fingers में. Now imagine how your nails are attached to the fingers of your hands. Now please notice that how the nails are attached to the fingers of your hands. Now please move towards your head and imagine that how your hair are attached to your head. किस तरीके से आपके बाल आपके सर के साथ जुड़े हुए हैं, ये महसूस करने की कोशिश कीजिए. Now bring your attention towards your breathing. See the belly movement, and as you breathe out, आपके belly movement में क्या changes आ रहे हैं as you breathe in, as you breathe out. Now slowly open your eyes and type in the chat box that how do you feel after this meditation. Please share your experience. How do you feel? Please type it in the chat box. How do you feel after the meditation? How do you feel after the meditation? Feeling my own soul. Okay, relaxed, peaceful, very relaxed and light. Great, great, my dear friends. Feels good. Great. Thank you so much for participating in this meditation. I'm really sure whosoever participated is feeling so much better. Great. Now, so there are a lot of such small meditation. What we do, maybe next meditation we can do in the next session whenever we meet next. So I have in my mind a beautiful another meditation which is there. So we'll do that in the next time. Even sounds near me are less disturbing now. Very nice. Okay, now let's move ahead, my dear friends. Now that you have meditated, you feel a little more better. So now let's understand that how we can actually make the best use of the time. जो कोरोना वायरस जो है ये हमारे लिए किस तरीके से एक ब्लेसिंग है और हम इसको बेहतरीन इसका फायदा किस तरीके से उठा सकते हैं.
now that we are prepared कि हम अपने mind को कैसे train कर सकते हैं positive चीजों के लिए with the help of affirmations and with the help of looking at the positive things in a right way. So अब मैं आपको बताता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, हमारी सबकी लाइफ के 4 पिलर्स होते हैं. देयर आर 4 वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द लाइफ. फर्स्ट इज फिजिकल, मतलब जो इंसान फिजिकली फिट नहीं है वो इंसान दुनिया में कुछ नहीं कर सकता है. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पिलर, वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ आवर लाइफ इज बीइंग फिजिकली फाइन. That involves sleeping, stretching, walking, physical release, healthy food, yoga and rest. This is one of the most important pillar of our life. First is physical. तो मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी कराता हूँ मजेदार, जो कि मैं कॉर्पोरेट में कराता हूँ, लोगों को बड़ा मजा आता है. तो जहाँ पे भी आप बैठे हैं, यू ऑल मस्ट बी एबल टू सी मी. तो मेरे साथ बैठे बैठे क्या आप सब लोग हाथ ऊपर करके इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं एक बार? आज तो योगा डे भी है. कैन एवरीबॉडी डू लाइक दिस? मतलब जैसे हाथ ऊपर कर सकते हैं दोनों, एंड उसके बाद आराम से हाथ पीछे रख के जस्ट सिट इन द रिलैक्स पोजीशन. कीप योर स्पाइन स्ट्रेट एंड सिट इन द रिलैक्स पोजीशन. तो बीच बीच में यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल वेलबीइंग बिकॉज अ हेल्दी माइंड इज ऑलवेज पोजेस्ड इन अ हेल्दी बॉडी. फर्स्ट इज बीइंग फिजिकली फिट, जो कि आप इस लॉकडाउन में, दिस इज द बेस्ट टाइम टू वर्क अपॉन योर हेल्थ, सो दैट कल को आप जब अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं, जब आप लोग एक अच्छी पोजीशन पे आ जाते हैं, उस टाइम शायद आपको टाइम नहीं मिलेगा अपने फिजिकल वेलबीइंग पे काम करने का. तो बेटर है आप अभी अपने फिजिकल वेलबीइंग पे काम कीजिए. सेकंड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज द इमोशनल वेलबीइंग. स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो आज आप एक सेशन अटेंड कर रहे हैं कि स्ट्रेस को कैसे दूर रखें, हैप्पीनेस को कैसे अपनी लाइफ में लेकर आए, अपने माइंड पे कैसे कंट्रोल करें, इस चीज को सीखिए. माय डियर फ्रेंड्स, ये भी एक आर्ट है. बहुत लोगों को आती है बट उससे भी ज्यादा लोगों को नहीं आती है. एज अ रिजल्ट दे टेक नेगेटिव एक्शंस इन देयर लाइफ, दे कमिट सुसाइड, दे कमिट क्राइम्स, they get into depression, they get extreme stress, they get anxious. All these things happens only because of lack of clarity of emotional well-being. तो अपने इमोशनल वेलबींग को कैसे बढ़ाना है, इस पे काम कीजिए. अगर आपको चाहिए, इन फ्यूचर वी कैन डू मोर सेशंस विद यू ऑल, right? We can have more practical sessions with a little lesser audience where social well-being. Social well-being means, see, we humans are social animals. We are animals who have social instincts. हमें मन करता है लोगों से बात करने का, हमें मन करता है लोगों से डील करने का. अच्छा, आप में से काफी लोग लॉ वाले लोग हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डू यू नो व्हाट इज द वर्स्ट पनिशमेंट? ओके शुभांगी, आई विल कम ऑन दैट. सो अभी सोशल वाले को डिस्कस करते हैं. So do you know, my dear friend, what is the worst punishment which can be given to anybody on this earth? What is the worst punishment? सबसे खतरनाक punishment किसी को क्या दे सकते हैं? Death? नहीं. Shreya gave the right answer. Shreya Bhatnagar actually gave the right answer. Solitary confinement. मतलब आप किसी को डेथ दे दो वो उसको मंजूर है, आप उसको बॉडीली इंजरी दे दो वो उसको मंजूर है, आप उसको कसरत करवा दो वो उसको मंजूर है, बट अगर किसी इंसान को अकेला छोड़ दिया जाए वो इंसान पागल हो जाता है. सॉलिटरी कंफाइनमेंट इज द worst punishment which can be best and worst punishment. Best as in सबसे खतरनाक punishment देनी है उसको solitary confinement दे दो. So we all are social well-being, social humans, and we need social well-being. So start talking to people, start communicating, understand. So there are a lot of books which you can read to understand your social well-being. So there is a very beautiful book, I'll write the name for you in the chat box, which I believe every human should read, and whosoever has read it will believe with me and actually agree with me. I've written the name of the book in the chat box, How to Win Friends and Influence People. So it's a beautiful book. If you want to work upon your social skills, that is one book you should definitely read. So coming to the last point, and which is most important point, my dear friends, as per what I feel, explore your spiritual journey. See, we are not humans on spiritual journey. We are all spirits on human journey. हम सब आत्माएं हैं जिसको ये शरीर मिला हुआ है अभी. चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, we all are same. We all are humans, and in each of us there is a small spirit, soul जिसको हम बोलते हैं. So understand your beliefs, connect more with nature. This is the best time. This time will never ever come back again.
क्योंकि जैसे ही वो टाइम नॉर्मल आएगा, क्लासेस खुल जाएंगी, मूवमेंट खुल जाएगा, दोस्तों से मिलना शुरू, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिलना शुरू, उसकी गर्लफ्रेंड से मिलना, उसके बॉयफ्रेंड से भी मिलना, वो भी बहुत जरूरी है जीवन में। ऐसे इस तरीके से सारे काम शुरू हो जाएंगे, फिर पढ़ाई ज्यादा बढ़ जाएगी, फिजिकल ट्रैवल ज्यादा बढ़ जाएगा, मस्ती ज्यादा बढ़ जाएगी, सब कुछ बढ़ जाएगा, एंड वी वोंट हैव टाइम फॉर वर्किंग अपॉन दीज 4 पिलर्स। दिल की बात कहती सर, हाँ याद आ रही होगी सब लोगों को, काफी लोगों को, बहुत लोगों की याद आ रही होगी इस समय लॉकडाउन में। वो परेशान है, मतलब हर आदमी अपने अपने रीजन से परेशान है ना, किसी को किसी बात की दिक्कत है, किसी को किसी बात की दिक्कत है, बट ट्रस्ट मी, वो सारा सब कुछ चलता रहेगा, खेलकूद है वो, दैट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ द लाइफ दैट विल कम एंड गो, बट द मेजर पार्ट इज दीज 4 पिलर्स, जिसके ये चारों पिलर स्ट्रॉन्ग है माय डियर फ्रेंड्स। सी, इन ऑर्डर टू सक्सीड इन लाइफ, सक्सीड करना बहुत इजी है, बट उस सक्सेस को संभाल के रखना, उस सक्सेस पे स्टिक करना इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग। तो उस पे स्टिक करने के लिए ये आपके चारों पिलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। नाउ हाउ कैन यू डू दिस, आई टेल यू दैट आल्सो। सो वर्क अपॉन योर रिलेशनशिप, अटेंड मोर वेबिनार्स, अपस्किल योरसेल्फ, अपस्किल मतलब अपने आप को डेवलप कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट, एक टू डू लिस्ट बनाइए, गोल शीट बनाइए, उस तरीके से काम कीजिए। पावर ऑफ रूटीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये मतलब लिख के दे सकता हूँ ये बात, हम में से जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं 90% लोगों का रूटीन बिगड़ चुका है ना। कई लोगों को मैं आज अभी सुबह सुबह व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा था 7 बजे के अराउंड, तो मैक्सिमम लोगों के जो व्हाट्सएप स्टेटस थे वो उन्होंने डाले हुए, किसी ने 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जो मेरे ऐसे रिश्तेदार थे जो 9 बजे एकदम चद्दर ओढ़ के सो जाते थे, सुबह 5 बजे उठते थे, उनके भी रात को 2-2, 3-3 बजे स्टेटस अपलोड हो रहे हैं आजकल। तो मतलब सबका टाइम बिगड़ चुका है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू रियली वांट टू सक्सीड इन समथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हैव द पावर ऑफ रूटीन, हैव अ टाइम टेबल, हैव अ डेडिकेटेड। जेट लैग हो गया है, कहाँ से आए हो यार, मतलब लोगों को मस्ती करने में मजा आ रहा है, कह रहे जेट लैग, मतलब तो जोक हो गया बढ़िया। So power of routine is have a dedicated office space, have the boundaries between physical, professional and personal things. अगर आप घर में ये रूटीन नहीं बना पाते हैं तो आप नेगेटिविटी का शिकार होंगे ही होंगे, बट अगर आप इस चीज को एक रूटीन बना सकते हैं, एक पावर स्केड्यूल बना सकते हैं, तो जर्नी वहां से स्टार्ट होती है। स्टार्ट मेकिंग अ शेड्यूल एंड अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम। And coming to the last but not the least things, my dear friends, this is a circle of life, circle of concern, circle of influence, circle of control. कोरोना वायरस अभी आया बाहर, उसने हम सबको कंसर्न किया, है ना, हम सबके लिए कंसर्न है, उसने हम सबको इन्फ्लुएंस किया, परेशान किया, हम सबको घर में बिठा दिया, हम सब लोग बाहर नहीं जा सकते, एक दूसरे से हाथ नहीं मिला सकते हैं, पब्लिक गैदरिंग्स नहीं कर सकते हैं। एक होता है सर्कल ऑफ कंट्रोल। सर्कल ऑफ कंट्रोल मतलब जो हमारे हाथ में है। क्या हमें कोरोना वायरस बुक्स पढ़ने से रोक सकता है? क्या हमें कोरोना वायरस आगे बढ़ने से रोक सकता है? क्या हमें कोरोना वायरस रिलेशनशिप्स मेंटेन करने से रोक सकता है? कम ऑन, यस और नो, टेल मी, कीप इंटरेक्टिंग, जस्ट 5 more minutes to go, है ना। क्या हमें कोरोना वायरस जीवन में अच्छे वेबिनार्स अटेंड करने से रोक सकता है? क्या हमें कोरोना वायरस अपने ऊपर काम करने से रोक सकता है? So external circumstances will keep on coming and keep on going, but the real stress-free person and the positive person is who keep maximum things in the circle of control. मतलब चीजें उसको लाइफ में कंट्रोल ना करें, जब वो चीजों को लाइफ में कंट्रोल करता है वही इंसान कुछ कर पाता है लाइफ। तो सर्कल ऑफ कंसर्न जो और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है वो हमेशा लाइफ में छोटा होना चाहिए, और जो सर्कल ऑफ कंट्रोल है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। सर्कल ऑफ कंट्रोल मतलब जो भी चीजें हमारे आसपास हैं उन सब चीजों पे हमारा मैक्सिमम कंट्रोल होना चाहिए, कि हम डिसाइड करेंगे हमें ये चीज करनी है या नहीं करनी है, राइट। सो with this quote I would want to end this session today, my dear friends. If you think you can do a thing or you think you can't, you are anyways right. So it all starts with a thought. अगर आपको लगता है आप एक स्ट्रेस फ्री जीवन जी सकते हैं, आप खुशहाली के साथ जी सकते हैं, आप पॉजिटिविटी अपने अंदर ला सकते हैं, तो आप बिल्कुल ठीक हैं। और मजे की बात, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं ये मेरे लिए बना ही नहीं है, मेरे को तो जीवन में दुखी मिलेंगे, इतना कंपटीशन है, ये वो है, अगर आप नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे तब भी आप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इट ऑल स्टार्ट्स विद थॉट प्रोसेस। तो शिवांगी का एक कंटिन्यूअस क्वेश्चन है इमोशनल मैच्योरिटी के ऊपर। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको बोलते हैं ईक्यू। ईक्यू का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशंस एंड अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ अदर पर्सन्स। So, and how do you understand your own emotions? By sitting down,
बट राइटिंग डाउन थिंग्स कि आपको क्या बॉदर कर रहा है, किस तरीके से बॉदर कर रहा है, इससे आप कैसे बाहर आ सकते हैं और उसको फिर आप ठीक कैसे करें. So that's another session altogether, Shubhangi. मतलब emotional intelligence is a very broad chapter. Maybe next time we can do a session on emotional intelligence. So I see Zia ji has come online and he is able to see us all now. So over to you, Zia ji. And if we have any questions, I'm willing to take it up. So I hope you all like the session. Thank you so much. So we are open for a question also, and we are not going to close session so easily. It was such an interesting session. So I ask every person if they have any question to the sir. We are not going to stick on 1 hour. You can ask the question. We can take 10 to 15 minutes more from the sir. So if you have any question related to your personal life, any question related to any other thing which you want to ask privately also, you just raise your hand and we will make your chat box private and you can directly ask to sir. Nobody else other than sir will be able to see the question. राइट दैट्स अ वेरी गुड वे. जिया सर ने बड़ा अच्छा एक तरीका दिया है कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसा है तो आप मेरे को पर्सनल विंडो पे भेज दीजिए, मैं आपका नाम नहीं लूंगा बट आंसर कर दूंगा. एंड प्लीज आल्सो गिव योर फीडबैक इन द चैट बॉक्स. सो आई सी अ लॉट ऑफ सर यू हैव अ यूट्यूब चैनल. यस आई हैव अ यूट्यूब चैनल अक्षय अग्रवाल के नाम से. Yes, sir. तो अक्षय अग्रवाल के नाम से ही है यूट्यूब चैनल. किसी सर आई ऑलवेज गेट क्वेश्चन इन माय माइंड लाइक हु इज गोइंग डूइंग व्हाट डज द इफेक्ट टू अदर्स टू और नॉट. मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन. किसी का आया है प्राइवेट विंडो में, लंबा क्वेश्चन है बट मैं समझ नहीं पाया. तो प्लीज ऑल्सो डू गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्रेंड्स. सो वी स्टिल हैव 90 पीपल. मुझे बड़ी खुशी की बात है, लगभग 90 का एवरेज हम 11 बजे से मेंटेन करते हुए चल रहे हैं और सेशन खत्म हो गया फिर भी कोई जाने को तैयार नहीं है. और जनरली मैं वेबिनार्स में देखता हूँ मार्केट में कि जो वेबिनार चल रहे होते हैं लोग आते बाद में, भागते पहले हैं. तो लोगों को बांध के रखना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. बट यू ऑल आर स्टिल स्टिकिंग टू दिस वेबिनार. So I guess Zia Judicial deserves a congratulation here for hosting such a session. We will be having such session after the lockdown also, sir, because this is a great need. Children's at that time. My colleagues are also here who are judges right now. My colleagues are there who are assistant professor right now. Your colleagues are there. Our students are there. We all are facing these such type of situations because sometimes we know we have to be positive, but there one should be someone who should tell us that how to be positive. So sometimes we forget the techniques to be positive. At last we are having that session. It is so enlightening. So we can end up this session if you people allow us, or if you want to ask any question. I give you 2 minutes more. अच्छा आ रहे हैं सर. जिया जी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं जस्ट Yes, sir, you क्विकली can आंसर करता हूँ. So why can we, how can we keep ourselves motivated continuously? So to keep ourselves motivated, what is the best strategy is keep your goals in front of you. Goals मतलब कि जैसे आप सब लोग कोचिंग कर रहे हैं तो काफी बारी होता क्या है कि एक मोराल टूट जाता है, मजा नहीं आता है काम करने में. तो वो जब मोराल टूटता है, what you can actually do is keep your goals in front of you and keep focusing on that goal again and again, so that goal will keep you motivated. So I guess we are now sir, how to overcome feeling of anxiety when it's beyond your control and you just want to run and hide somewhere. तो बिल्कुल ठीक है, जिसका एक क्वेश्चन है मैं नाम लेना चाहूंगा बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नेगेटिविटी का ना लूप बन जाता है. तो नेक्स्ट टाइम व्हाट वी कैन डू इज सर, जिया जी व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कंडक्ट अ सेशन ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस ओनली. तो इमोशनल इंटेलिजेंस में मैनेज करेंगे कि अपने इमोशंस को एक्चुअली कैसे मैनेज करना है, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं. हाउ टू मेंटेन द पॉजिटिविटी, हाउ टू in recent time bad happens except बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. what we can do is मैं आप लोगों को ना अपना एक इंस्टाग्राम का और लिंक्डइन का भी वो देता हूँ. तो आप लोग सब मुझसे टच में रहिए, मैं आपको इंडिविजुअली वहां पे आंसर करने की कोशिश करूंगा. दिस इज माय इंस्टाग्राम लिंक Akshay4866. आई गिवन इट टू यू. And LinkedIn I am again there in the name of Akshay Agarwal only. Please feel free to write down your question or mail your questions to me क्योंकि अभी बहुत सारे questions आ गए हैं. Okay. तो So we will have one more session within 2 or 3 weeks about emotional intelligence only. So I will try to keep this thing continuous so that we can give the maximum benefit to the maximum number of people, sir. Right. So thank you very much, sir. It was really an interesting and overwhelming session, and really it has given so much of positivity to me also. So I got so positive.